Hello everyone, welcome back to our next class of class 11 physics chapter 3, motion in a straight line. Topic is speed and velocity. Yes, oh, you were in motion. Okay, what was your distance, total path length covered by you during your motion? Yes, okay. What was your displacement, means in which direction were you moving? Okay, and what was your speed during your motion? Yes, my dear children and friends. Today we are introducing a new topic, that is speed and velocity. Yes, अभी तक हमने बात की मोशन की, लेकिन मोशन तभी तो क्लियर होगा कि मूविंग कोई भी ऑब्जेक्ट है with respect to some reference point. If you or any object vehicle is going on or in moving position, हम कैसे पता लगाते हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं with our reference point. अगर कोई reference point नहीं होगा तो हम नहीं बता सकते कि आप मोशन में हैं या रेस्ट पर हैं. Now we are moving ahead with speed. Let's start that. Yes, we'll explain in this topic lesson speed and velocity. What is the definition of speed? Speed is the rate of change of distance. As I have explained, rate of change. What do you understand by the term rate? देखो, जब भी कभी रेट की बात होती है तो रेट का मतलब होता है any physical quantity divide by t, small t, time taken. ओके तो यहाँ पर जैसे इन्होंने स्पीड इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस यानी d बाई टी. ओके, अभी हम इसके बाद जब एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो हम इसी चीज को आगे भी देखेंगे. ओके तो अभी हमने क्या देखा, रेट स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन एंड वी डिनोट दिस टॉपिक स्पीड. स्पीड को हम स्मॉल v से और वेलोसिटी को भी स्मॉल v से डिनोट करते हैं. ओके, नाउ व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पीड और वेलोसिटी? देखो यहाँ पर डिफरेंस एक बात का है कि वेलोसिटी इज डिफाइंड एज rate of change of displacement upon time taken is known as velocity and v is equals to speed is equals to d upon t यानी distance upon time taken. तो हमने ऑलरेडी पढ़ी चुका है कि डिस्टेंस क्या होती है, पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट द पाथ लेंथ ट्रेवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन. तो क्या हो जाएगा जब आप इसके स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी की बात करेंगे, वो हम आगे करेंगे. नाउ वी आर इंट्रोड्यूसिंग द यूनिट्स. As displacement is a distance, it will be in meter and time will be in second. So unit will be meter per second, isn't it? For both, because it is displacement का unit is also meter and time is second, तो meter per second again for velocity. So आगे देखेंगे. So speed is the rate of change of position of an object with time in any direction. No direction matters here. Is called speed. Distance traveled upon time taken. The formula will be v is equals to x by t. X is distance here. SI unit is meter per second. CGS unit is centimeter per second. And my dear friends and students, class 11th के आपके चैप्टर में आगे अभी लास्ट पढ़ा ही था in our first chapter dimensions के बारे में. तो हमारी अब फिजिक्स में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अधूरी है जब तक आप उसको डायमेंशन एक्सप्रेस ना करें. तो यहाँ पर डायमेंशन क्या होगी, x is equals to मीटर डिस्टेंस है एंड टाइम सेकेंड है. मीटर इज रिप्रेजेंटेड अ लेंथ एंड टाइम इज सेकेंड इज रिप्रेजेंटेड टाइम. तो एल टी माइनस 1 विल बी द डायमेंशन ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी बोथ. आगे हम देखेंगे. नाउ हियर आर टाइप्स ऑफ स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड एंड variable speed. Uniform, what do you understand by the term uniform? Yes, uniform means uniformity यानी constant. कोई भी object traveling with uniform speed having equal distances in equal intervals of time, however small these time intervals may be, this is the uniform speed. मतलब आप कहीं जर्नी पे जा रहे हैं, आपने पहले 1 किलोमीटर में 1 घंटे में तय किया, दोबारा 1 किलोमीटर और बढ़े तो भी 1 घंटे में ट्रेवल किया,
आगे 1 किलोमीटर और बढ़े तो भी 1 घंटे में, तो आपकी कांस्टेंट स्पीड चल रही है, यानी बार बार आप डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करें तो इट इज सेम, यानी यूनिफॉर्म. But in variable speed, an object with variable speed, if it covers unequal distances in equal interval of time, unequal distances in equal interval of time, मतलब डिस्टेंस तो अलग अलग, कभी 2 किलोमीटर चल रहे थे तो 1 आवर में चला, फिर आपने गाड़ी बढ़ाई और 3 किलोमीटर आप 1 आवर चल दिए, तो यानी वेरिएशन आ रहा है ना, वेरिएशन, द वर्ड वेरिएशन दिख रहा है आपको आपकी स्पीड में, तो इट इज नोन एज वेरिएबल स्पीड. सो मूविंग अहेड विद नाउ average speed. What do you understand by we are discussing so many kind of speed right now? No, we discussed about uniform speed, variable speed. Now it is average speed. What do you understand by average? आप एवरेज किसी भी चीज का कैलकुलेट करते थे कैसे, लाइक टोटल आपका डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, या टोटल क्वांटिटी इज गिवन नंबर ऑफ क्वांटिटी इन डिनोमिनेटर, है ना. अब वही हम एवरेज स्पीड निकालेंगे. फॉर एन ऑब्जेक्ट विद वेरिएबल स्पीड द एवरेज स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस traveled by the object divided by the total time taken to cover the distance. So it will be average speed and we can denote this symbol. अगर आप लेंगे तो आप average भी ऐसे लिख सकते हैं, total distance upon total time taken. This is known as average speed. Now instantaneous speed, as the word says, instantaneous means ताक्षणिक, तत्क्षण means in हिंदी तत्क्षण. देखिए क्या होता है ना, हमारा जो हमने टाइम के बारे में बहुत कुछ पढ़ा, लेकिन हमारे एंशिएंट टाइम जब हमने इंट्रोड्यूस किया था टाइम के बारे में, तो जहां से हमने स्टार्ट की थी ना जर्नी फॉर टाइम की यूनिट्स की, आर पता है हमें, सेकेंड्स पता है, मिनट्स पता है, तो वहां पे मेरे प्यारे बच्चों और फ्रेंड्स, वहां पर ही हमने इंट्रोड्यूस की थी एक और यूनिट, वहां स्टार्ट हुई थी पल. मतलब अभी हम पल की बात करते हैं, पल 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 पल, वो पल भी इंट्रोड्यूस्ड है इन योर फिजिक्स. आई विल टेक अनदर लेक्चर फॉर इट. बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग है. मतलब हमारा जो साइंस और मैथ्स है ना, ये हमारे एंशिएंट ज्ञाताओं, साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन की एक देन है, जो हमारे हिंदुस्तान में, हमारे इंडिया में, हमारे भारत से ही स्टार्ट किए, और वो जर्नी आज बनते बनते, यू विल नॉट बिलीव, if you go through with the class 9th maths book these days, जो अभी CBSE बोर्ड ने न्यू बुक इंट्रोड्यूस किया, you will not believe कि वो बुक is not for maths only, it is our ancient mathematicians का बारे में बताती है, साथ में आपको प्रैक्टिकल नॉलेज से जोड़ती है वो बुक. मतलब हम क्यों पढ़े मैथ्स, हम क्यों पढ़ रहे हैं फिजिक्स, ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी आपको इस बारे में लेक्चर दिया है कि ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है दुनिया में जो हमें प्रैक्टिकली यूजफुल ना हो. तो ये कहने की बात है ही, होती ही नहीं है. बच्चों को समझाने के लिए बहुत जरूरी है कि हम, होता है ना बॉदरनेस में कि वाई वी आर स्टडिंग फिजिक्स, वाई वी आर स्टडिंग मैथ्स, तो वहां पर ये पॉइंट जरूरी हो जाता है बताना कि बच्चों इट इज टोटली कनेक्टेड विद रियल लाइफ एप्लीकेशंस. सो इट इज मैंडेटरी टू लर्न टू स्टडी दीज सब्जेक्ट्स. ओके, चलिए टॉपिक पर आते हैं. वी वर ऑन इंस्टेंटेनियस स्पीड. जैसा कि मैंने कहा इन हिंदी, ताक्षणिक, तत्क्षण, या वो समय का वो पल, उस एक छोटे से पल पर घटने वाली स्पीड कितनी होगी किसी ऑब्जेक्ट की, that on that any particular instant of time or at any particular point of its path is called its instantaneous speed. Okay, सपोज अब हम इसे डिनोट कैसे करते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता उस पूरे टाइम ड्यूरेशन में, सेकेंड्स ही मान लो, तो कौन सा पल में घटा, हम पल का कोई एक छोटा पार्ट लेकर चले, बहुत छोटा, पता नहीं कितना, तो उसे डेल से इंट्रोड्यूस करते हैं, और बाद में वो जब हम उसकी लिमिट लगाते हैं, मैथ्स में आप ये पढ़े होंगे, लिमिट वैल्यू लगाते हैं, डेल टी टेंड्स टू 0, तो ये बन के आता है dx by dt. तो इसका फॉर्मूला आपके पास होगा v is equals to dx by dt. आई होप आपको ये टॉपिक इंस्टेंटेनियस स्पीड और काइंड ऑफ स्पीड क्लियर हुआ होगा. नाउ स्पीडोमीटर, बिना गाड़ी के तो किसी की गाड़ी चल ही नहीं रही है, मीन्स आप कहीं भी जाने के लिए अपनी गाड़ी, अपने व्हीकल को से ही जाते हैं, कहीं बस हो, कार हो, एनी व्हीकल. ओके, उसमें एक डिवाइस लगती है टू मेजर द इंस्टेंटेनियस स्पीड, और स्पीड
that device is known as speedometer. So it is a device using in the vehicles or any automobile. ठीक है, तो इसे कहते हैं speedometer. Now moving ahead, we are taking new topic that is average speed in different situation. अब हम पे अलग अलग situation है, निकालनी हमें average speed ही है. तो फर्स्ट केस इज अ बॉडी कवरिंग डिफरेंट डिस्टेंसेस विद डिफरेंट स्पीड. कोई बॉडी ऑब्जेक्ट है, वो डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस कवर कर रहा है डिफरेंट स्पीड के साथ. है बात विस्मय वाली. सपोज अ बॉडी कवर्स डिस्टेंसेस s1, s2, s3 with speed v1, v2, v3 respectively. Then it's की हम एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? तो फॉर्मूला विल बी अगेन v average is equals to total distance upon time upon total time taken, that is s upon t. नॉर्मल फॉर्मूला आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम. सारे डिस्टेंसेस को ऐड सम अप करेंगे, डिवाइड करेंगे विद द टोटल टाइम टेकन ड्यूरिंग दैट जर्नी. तो v एवरेज, अब यहाँ पर t1 कौन है? हम जानते हैं द फॉर्मूला ऑफ स्पीड इज इक्वल्स टू एस अपॉन टी, और अगर मुझे टी चाहिए तो इस विल बी एस अपॉन वी ऑब्वियसली. तो यहाँ सारी वैल्यू t1, t2, t3 की आपने पुट करी. s1 अपॉन v1, s2 अपॉन v2, s3 अपॉन v3. सो यहाँ पे क्या होगा आपके पास? सारे s1, s2, s3. इस तरह से ये फिनोमेना, ये फॉर्मूला बन गया. ना कुछ केस अराइजेस हैं. यहाँ पर पहला केस है, अगर s1, s2 सारे आपस में इक्वल हो तो वैल्यू क्या बन के आती है? s. सब इक्वल है, तो यहाँ फॉर्मूला में लगाओ जरा s s s, सो मेनी s. तो क्या आएगा? अगर हम दो डिस्टेंस लें s1 एंड s2, तो इट विल बी 2s. s into here is s also 2s. s कॉमन लिया ना, यहाँ से s कॉमन लिया है. s is 2s upon s bracket 1 upon v1 plus v2. s to s cancel, we'll get 2v1 v2 upon v1 plus v2. So here the average speed is the harmonic mean of the individual speed. एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू हार्मोनिक मीन. आप ये सब एपी और आपका क्लास 10 के मैथ्स में पढ़ के आए हैं. आगे चलते हैं. नाउ नेक्स्ट केस, अ बॉडी मूविंग विद डिफरेंट स्पीड्स इन डिफरेंट टाइम इंटरवल. अब कोई बॉडी ऑब्जेक्ट डिफरेंट स्पीड और डिफरेंट टाइम में चल रहा है. वहां पे तो सेम स्पीड थी. सपोज अ बॉडी ट्रेवल्स विद स्पीड v1, v2, v3 in during time intervals t1, t2, t3 respectively. Then total distance क्या होगी? Formula is again v is equals to s upon t, distance upon time. तो s is equals to vt. तो जहां जहां v1 आपका total distance यानी s1, s2, s3 इनकी वैल्यू पुट करो. v1 t1, v2 t2, vt t3 and so on. t1, t2, t3 are the total time taken. उन्हें आपने इस तरह से लिख लिया. तो एवरेज वेलोसिटी विल बी, एवरेज स्पीड विल बी v1 t1 v2 t2 प्लस vt t3 अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3. तो और अगर मैं यहाँ पर केस में सारा टाइम को t कंसीडर कर लूं इक्वलेंट टू t, व्हाट विल बी द फॉर्मूला? ऊपर से हमने t कॉमन ले लिया, t विल बी हियर, नीचे ऑल्सो t इज सेम. तो v1 प्लस v2 प्लस v3 एंड सो ऑन Vn upon n, it will be your average speed. So in this case, average speed is arithmetic mean of the individual speeds. So I hope आपको ये 2 cases average speed in different situations clear हुए होंगे. आगे चलते हैं. Now बात करते हैं हम जब भी फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटीज की, तो हम उनके स्केलर्स और वेक्टर्स पार्ट को छोड़ नहीं सकते. स्केलर्स वर्सेस वेक्टर्स. स्केलर्स क्या होते हैं? स्केलर्स हैविंग द क्वांटिटी विच आर हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड. डायरेक्शन मैटर नहीं करती, उन्हें कहते हैं स्केलर क्वांटिटी. और जहां मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मैटर करती है उन्हें कहते हैं वेक्टर्स. अब मैग्नीट्यूड ओनली जहां स्पीड, डिस्टेंस, टाइम तीनों में मैग्नीट्यूड मैटर करता है, डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है. तो these are known as स्केलर क्वांटिटीज. एंड वेक्टर्स में वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, जो अभी तक हमने टॉपिक्स पढ़े वहां पर अभी तक हमारे पास आती है वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट आपकी वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज दोनों हैविंग मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन टू. यानी आप जा तो रहे हो पर किस डायरेक्शन में जा रहे हो, तब बनती है वेलोसिटी. डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन. लेकिन अगर आप वैसे ही पाथ लेंथ कवर की कितनी करी कितने टाइम में, तो इस विल बी स्पीड. सो my dear friends and students, now we'll do some numericals and examples based on this topic, total topic
speed, velocity and average velocity and instantaneous speed and instantaneous velocity and एवरेज स्पीड इन डिफरेंट सिचुएशन, जो हमने केसेस पढ़े उन पर बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे. तो वील मीट इन द नेक्स्ट क्लास. प्लीज स्टे कनेक्टेड विद योर टीचर, विद योर मेंटर, विद योर स्टडी पार्टनर हिमानी एट माय चैनल फिजिक्स बाय हिमानी. सो लेट्स एंजॉय द जर्नी ऑफ फिजिक्स विद योर टीचर. ओके, एंजॉय द beautiful journey of physics with me at my channel only. Okay, if you have any doubt or query, please do comment in the comment section and do not forget to subscribe, like and share my channel for upcoming videos. Okay, till then stay happy and blessed. Bye bye, good day.